Morning student. In my previous video, I talk about the very important topic of financing, that is financial planning. In that we had discussed what is financial planning, what are the features of financial planning, then what are the importance of financial planning. Today again we are going to discuss a very important topic of this chapter, financing, that is a capital structure. Now, what is capital structure? Before we discuss any other point of this topic, first of all, we should know what is a capital structure. Now, capital, all you know, what is the meaning of capital? Whenever we start any business, we need fund, we need money. And that money which we introduce into our business, that is known as an capital. Now, capital structure consists of two terms. One is equity and another is debt. Equity and debt. यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर घर के पैसे और बाहर के पैसे से मिलकर बनता है, और वो कैपिटल जो कि घर और बाहर दोनों से मिलता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाई वी से कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड. ओनर्स फंड का मतलब वो पैसा जो कि हमारा है, एंड बोरोड फंड. बोरोड फंड मीन्स वो पैसा जो हमने बाहर वालों से लिया है. Owner funds refers to equity. Equity means share capital, and borrowed fund as debt. Borrowed fund means like I taken a loan from a bank. I raised the money from the debenture holders, so that is known as a debt. So overall, capital structure refers to the ratio between the owner's fund and the borrowed fund. Owner funds refers to equity and borrowed funds as debt. Therefore, capital structure equals to debt upon equity. यानी कि the ratio which expressed in the form of debt upon equity, this is known as capital structure. And this capital structure, this ratio, debt upon equity, this ratio, we can call it as an financial leverage also. So कैपिटल स्ट्रक्चर में पैसा घर वालों का और बाहर वालों का. घर वालों का मीन्स दैट इज ओनर्स मनी, एंड बाहर वालों का मीन्स दैट इज अ बोरोड मनी. व्हेन बोथ जॉइंस टुगेदर, देन वी कैन कॉल इट एज एन कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ लॉन्ग टर्म फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड. नाउ फ्रॉम वेयर वी कैन रेज दिस डेट. Debt means long-term borrowings, and from where we raise this long-term borrowings, long terms can be obtained owners and the borrowers. कहाँ से ये पैसा आएगा? Owners के पास से आएगा या फिर borrowers के पास से आएगा. Ownership fund consists of share capital and retained earning. Now share capital क्या होता है? Share capital means वो पैसा जो कि शेयर कैपिटल से हम लोग रेज करते हैं, यानी कि जब हम शेयर को इशूड करते हैं मार्केट में और उससे जो हमें पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल. सो ओनरशिप फंड इज कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग मीन्स वो पैसा जो हमने पहले से अपने पास प्रॉफिट्स में से बचा करके रखा था कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे को हम यूज करेंगे. सो रिटेन अर्निंग ऑलवेज बी क्रिएटेड टाइप ऑफ प्रॉफिट. रिटेन अर्निंग का मतलब है ये प्रॉफिट है बिजनेस का, जिसको कि हम लोग अपने पास रखते हैं बिजनेस में लगाने के लिए. सो देयरफॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओनर्स एंड द बोरोवर्स, whereas ownership fund consists of share capital and the retained earning. So overall, capital structure consists of two terms. One is the debt and another is equity. So this is a capital structure. Now the next topic is that what are the factors affecting the capital structure. This topic is very important, and in the board examination usually the question asks for 3 or
the 4 marks, 5 marks, this question always asked. Many years after break of 1 year, this question asks कि what are the factors which affect the capital structure. So I written already the first factor which affect the capital structure. This is very important also, and that is trading on equity. Trading on equity. This we can call it as an financial leverage also. तो एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दोनों का मतलब सेम होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. नाउ इक्विटी वर्ड तो समझ में आ गया. इक्विटी का मतलब होता है अ फंड विच वी आर रेजिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. शेयर से जो पैसा हम रेज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी. द वर्ड इक्विटी डिनोट्स द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. और ये कौन होते हैं इक्विटी? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ये कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स taking advantages of equity share capital to borrowed fund at a reasonable basis. Equity means taking advantages of equity share capital. अब देखो, जब लोग हमारा पब्लिक हमारा शेयर खरीदती है तो हमें हमारे उनका क्या होता है? पब्लिक का इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आवर कंपनी, एंड फॉर आवर कंपनी इट इज अ सोर्स ऑफ finance. It is what? It is a source of finance for a company. So it is just like a company is borrowing money from the public, and in that condition public को कंपनी ने क्या बना दिया? इक्विटी बनाया. अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो वो कंपनी के ओनर्स कहलाएंगे. They are called the owners of the company. Trading on equity is possible under the following condition. This topic is very important. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किस कंडीशन में केवल पॉसिबल है? नंबर 1, द रेट ऑफ कंपनीज अर्निंग इज हायर. द रेट ऑफ कंपनीज अर्निंग इज हायर. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. अब देखो, जैसे हम पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं अपनी कंपनी में, वैसे कंपनी भी अपना पैसा दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करता है. तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का जो मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है वो मेरी लायबिलिटीज जो मेरे को इंटरेस्ट पे करना है उससे अगर ज़्यादा है तो उसको कहते हैं कि इट इज़ एन एडवांटेज. हमारी कंपनी के लिए क्या है? एडवांटेज है, क्योंकि अगर हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है जितना हमको पे करना है, तो हम लोग ईजिली इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमको क्या हो रहा है? ज़्यादा मिल रहा है. सो दैट इज व्हाई द रेट ऑफ कंपनी अर्निंग इज हायर. कंपनी की अर्निंग्स जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होना चाहिए, जो कि वो पे करता है जब अपने डिवेंचर होल्डर्स को या शेयर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो उस रेट से इनका जो ROI है यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए. एक कंडीशन ये हो गया. सेकेंड, इट इज गिवन द कंपनी अर्निंग आर रेगुलर एंड स्टेबल टू अफोर्ड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. दूसरा फैक्टर्स बता रहा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कि कंपनी की जो अर्निंग है वो रेगुलर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब रेगुलर और स्टेबल होगा then only you are able to make the payment of interest, चाहे वो borrowings पे हो चाहे प्रेफरेंस शेयर पे हो. तब आप अपने डिवेंचर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टाइमली उनके इन्वेस्टमेंट्स पे आप उनको आराम से इंटरेस्ट पे कर सकते हो. थर्ड इज द कंपनी हैज अ सफिशिएंट एसेट which cannot be used as security to raise the borrowed fund. The company has sufficient asset which can be used. कंपनी के पास sufficient asset होना चाहिए, यानी कि अगर भविष्य में हमारे पास इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा नहीं है तो we can use our asset as security to raise the borrowed fund. बोरोड फंड यानी कि अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है लेकिन अगर हमारे पास एसेट्स है तो हम बाहर वाली पार्टी से फंड्स को बोरो कर सकते हैं और उनके सामने ये शर्त रख सकते हैं कि इन केस इफ कंपनी इज नॉट इन द पोजीशन टू मेक अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट,
हम अपने असेट्स को बेच करके उनके जो हमारी लाइबिलिटीज है उसको हम पे कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर मैंने दो टर्म्स के बारे में यूज किया है। वन टर्म आई हैड यूज्ड डेट और दूसरा मैंने वर्ड यूज किया इक्विटी। इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट इज डेट एंड द सेकेंड इज इक्विटी। नाउ दीज टू टर्म्स टू बी अंडरस्टैंड। द फर्स्ट इज डेट एंड द सेकेंड इज इक्विटी। एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, whereas इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे हम लोग अगर डिबेंचर्स हैं, अगर हमने डिबेंचर्स दिया है तो मान लो उस पर 10% का हमको इंटरेस्ट पे करना है। अब ये 10% का इंटरेस्ट जो है वो हमको पे करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कंपनी चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, इन एनी ऑफ टू सिचुएशन दिस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड ऑन डिबेंचर। इट मीन्स हमको ये पे करना ही करना है। सो इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टू मेक अ पेमेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। शेयर कैपिटल क्या होता है? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये ओनर्स होते हैं कंपनी के, और यहां पर जो रिस्क है वो लो रिस्क होता है। रिस्क इज लो। यहां पे रिस्क जो होता है, रिस्क इज हाई, risk is high, and here the risk is low. Now why the risk is high here? The risk is high here because in any situation, whether I am in profit or I am in loss, I have to make a payment of interest on debenture or dividend pay to the preference shareholder. चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो, इन दोनों ही कंडीशन में हमको अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट्स करना ही करना है। लेकिन शेयर होल्डर्स, इक्विटी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे ओनर्स हैं, और क्योंकि वो ओनर्स हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है उनको कि हम उनको डिविडेंड पे करें। शेयर, इक्विटी शेयर पे हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। तो फर्म को अगर प्रॉफिट होगी तो वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुई तो उनको प्रॉफिट पे करने की जरूरत है। यानी कि कंपल्सरी नहीं है कि दैट वी विल मेक अ पेमेंट टू अवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो रिस्क की चांसेस है वो लो है, यहाँ पे हाई है, क्योंकि चाहे कोई भी कंडीशन हो आपको ये इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही करना है। दूसरी चीज कि इफ यू फेल टू मेक अ पेमेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आप फेल कर गए तो ऐसे कंडीशन में कंपनी आपसे क्लेम करने लगती है। हर चीज जो बैंक जो है वो आपसे क्लेम करने लगती है, लाइक अ डिबेंचर होल्डर्स की तरह आपसे क्लेम करने लगेगी, और उनको पैसा चाहिए तो आपकी कंपनी के एसेट्स को बेच करके अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे। लेकिन इस तरीके का सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। ये लेस एक्सपेंसिव है। डेट क्या है? इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर इज एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि यहां पर आपको अगर पब्लिक को मोटिवेट करना है कि वो अपना पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो उनका जो ROI होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो डिविडेंड है, वो आपका इससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर ये 10% है तो 15 से 18% इनका डिविडेंड का रेट होना चाहिए, तब भी कोई कंपनी आपके में इन्वेस्टमेंट करेगी पैसा इक्विटीज में। नहीं तो सारे लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डेट में करेंगे। सो जब भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, वन शुड नो कि व्हाट इज द डेट ऑफ द कंपनी एंड व्हाट आर द equity of the company. So overall capital structure is what? Capital structure refers to the ratio between the owner's fund and the borrowed funds. Owner's fund refers to equity and the borrowed fund refers to debt, and therefore the ratio which express
Debt upon equity is known as capital structure, or we can call it as a financial leverage. Next factor which affect our capital structure, that is exercise of control. Now, in our company, equity shareholders are the owners of the company that you already studied. Equity shareholders are the owners of the company, and when a promoter issues shares to the public, then he issue two types of shares. One is the equity shareholders and one is preference share. Equity share and preference share. तो अगर हम इक्विटी शेयर को इशू करते हैं तो जो कंट्रोल है वो प्रमोटर के हाथ से इक्विटी शेयर होल्डर्स के, क्योंकि वो ओनर ऑफ द कंपनी हो जाते हैं। लेकिन अगर एक प्रमोटर नहीं चाहता है कि कंट्रोल उस, क्योंकि पहले कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्रमोटर्स के हाथ में होता है, और अगर वो नहीं चाहता है कि ये कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाए तो वो पब्लिक को इक्विटी शेयर इशू ही नहीं करता है। सो लेट्स सी exercise of control. In a company, equity shareholders have a voting rights and therefore control of the company lies in their hand. क्योंकि equity shareholders को एक कंपनी में वोटिंग करने का अधिकार है। वोटिंग करने का अधिकार किसके पास होता है? जो ओनर्स होते हैं उनके पास ही वोटिंग करने का राइट्स होता है in any company. So that is why they have, that is why the control of the company, जो कंपनी की कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? The control of the company is lies in the hand of equity shareholders. If the promoters of the company want to retain control in their own hand, लेकिन अगर एक प्रमोटर वो कंट्रोल उनके हाथ में ना दे करके अपने हाथ में रखना चाहता है तो वो क्या करेगा? It's very simple, वो इक्विटी शेयर को इशू ही नहीं करेगा। If the promoters of the company want to retain the control in their own hands, they may not issue additional equity shares to the public. In such a case, more funds can be raised by issuing debenture and preference share. अब मैंने बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर में कि फंड्स को जो हम रेज करते हैं वो दो जरिया है, एक है तुम्हारा इक्विटी और दूसरा है डिबेंचर। तो अगर मुझे अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है तो in this case, if I don't want to shift my control to the equity shareholder, then what I will do? Being a promoter, मैं इक्विटी शेयर को इशू ही नहीं करूँगी। तो मैं क्या इशू करूँगी? मुझे फंड्स तो चाहिए। तो इन दैट कंडीशन मैं पैसा कहाँ से जनरेट करूँगी, कहाँ से क्रिएट करूँगी? तब इन दैट कंडीशन मैं बैंक से लोन लूँगी, या फिर मैं डिवेंचर्स इशू करूँगी, या फिर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी। So this is known as an exercise of control. Control किस तरीके से हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में करते हैं, that comes under the heading of exercise of control, and this factor also affect your capital structure. Next is your need for flexibility. Need for flexibility. एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? According to environment, whenever there is a change in the environment, your capital structure also become more flexible in the nature. Business environment में already you had studied कि according to the environment business में changes आते हैं। तो यहाँ पर need for the flexibility, a good capital structure should be flexible so that adjustment can be made whenever the need arises. अब मुझे लगता है कि इक्विटी से कैपिटल ना रेज करके कैपिटल रेज किया डेट से, तो अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा तो हम इजीली जहाँ से भी चाहें फंड को क्रिएट कर सकते हैं। Wherever the need arises, debentures and preference share can be paid off whenever the company feels necessary, but equity shareholder cannot be paid off during the lifetime of a company. सबसे पहले अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो किसको पेमेंट करते हैं? डिबेंचर्स होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के समय पेमेंट होता है उसका, उनका पैसा अगर है तो वो करते, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। हेंस नीड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी
चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, हम उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ अ बिजनेस। कंपनी enjoying regular and liberal earnings. For example, public utilities can afford to have high capital gearing. On the other hand, business firms which are subjected wide fluctuation in demand and earnings may find it safer to depend more on equity capital and the preference share. New and stagnant firm may find it more difficulties to issue debenture and preference share than the well-established and growing companies. कभी भी कोई भी नई कंपनी अगर आती है तो उसको सबसे पहला सजेशन यही होता है कि वो कभी भी अपने इनिशियल स्टेज में, अपने बिगिनिंग स्टेज में दे नेवर इशू डिबेंचर्स, कोई भी लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स को इशू ना करें, क्योंकि अगर डिबेंचर इशू कर रहा है क्योंकि उनका बिगिनिंग स्टेज है, एंड डिबेंचर्स में व्हाट वी पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे फर्म को कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको पे करना ही करना है। तो इनिशियल स्टेज में, बिगिनिंग स्टेज में कंपनी तो खुद ही मार्केट में फाइट कर रही है अपने आप को स्टैंड करने में, ऐसे में अगर हम डिबेंचर्स पब्लिक को इशू कर देते तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती कि इस पर्टिकुलर टाइम पे उनको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो इससे बेटर ये है कि जब भी आप नए हो बिजनेस में, आपकी नई कंपनी हो, तो इट्स बेटर कि आपको सोर्स ऑफ फंड में आपको कौन सा सोर्स यूटिलाइज करना है, दैट इज इक्विटी। आप इक्विटी में पैसा डालिए, इक्विटी पब्लिक को इनकरेज करिए कि वो आपकी कंपनी का इक्विटी परचेज करें और आप भी इक्विटी को इशू करें। सो कंपनी इंजॉइंग रेगुलर एंड लिबरल अर्निंग example I already given, public utilities can afford to have high capital gearing. On the other hand, business firms which are subjected wide fluctuation in demand and earnings and may find safer, हर कोई सेफर महसूस करता है अपने आप को कि उनके इक्विटी पे उनको रिटर्न मिलेगा। So the first topic which I had discussed, trading on the equity. The second factors which affect your capital structure, that is exercise of control. Third is need for flexibility. Fourth is nature of business. Now let us discuss the next factors which affect the capital structure. See our fifth factor which affect the capital structure. And the fifth factor which affect the capital structure, that is cost of financing. As we had already studied that the capital structure is a combination of, it consists of debt and equity, and both are what? Both are the sources of fund for a business enterprises. तो दोनों में जिसका cost कम होगा, always company try to prefer to use that source only. So under the cost of financing, in a good financial structure, the cost of capital should be reasonable low. एक अच्छे capital structure में जो हमारा financial structure है, उसका cost क्या होता है, वो हमेशा reasonably अगर low है तो वो एक अच्छा financial structure है। In a good financial structure, the cost of capital should be reasonably low. Cost of capital depend upon the prevailing rate of interest, return expected by the investors, expenses and administrative expenses. यानी कि अगर इन्वेस्टर्स हमेशा इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको उस पर उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले, मैक्सिमम इंटरेस्ट मिले या मैक्सिमम डिविडेंड मिले, तो वो अपना पैसा वहाँ पर लगाते हैं। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कंपनी हमेशा उस सोर्स ऑफ फंड को यूज़ करने की कोशिश करती है जहाँ पर उनको इंटरेस्ट कम देना पड़े। लेकिन अगर हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रिएट करना है तो डेफिनेटली हमको वहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इक्विटी जो है वो एक्सपेंसिव होता है, डेट जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, रिस्क जो होता है वो डिवेंचर्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अगर हम
इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, रिस्क इस बात पे है कि अगर हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते तो हमारे एसेट्स, कंपनी के सारे एसेट्स को बेच करके सामने वाली पार्टी अपना पूरा पैसा वसूल करेगी। लेकिन इक्विटी में क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट होगा तो हम कोई डिविडेंड हम देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। इक्विटी के थ्रू जो फंड हम रेज करते हैं वो हमारा एक्सपेंसिव होता है। तो रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर, एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस ऑफ शेयर हाई, नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर दैट ऑफ द इक्विटी। अब इन दोनों में जिनका भी कॉस्ट लोअर होगा जिस भी कंपनी के लिए, कंपनी ऑलवेज ट्राई टू चूज दैट सोर्स फॉर रेजिंग अ फंड। जहाँ पर कंपनी को लेस कॉस्ट लग रहा होगा कंपनी उसी सोर्स को यूज़ करेगी। अगर कंपनी को लगता है डेट सोर्स सबसे अच्छा है, यहाँ पे लेस कॉस्ट है, तो कंपनी उस सोर्स को यूज़ करेगी। अगर कंपनी को लगता है कि नहीं हमारे लिए इक्विटी से पैसा रेज करना सही है और वहाँ पे लेस कॉस्ट लग रहा है कंपैरेटिवली, तो कंपनी ऑलवेज प्रेफर दैट। नेक्स्ट इज योर पीरियड एंड द पर्पस ऑफ फंड रेजिंग। फॉर फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट इन्वेस्टमेंट, अगर हमको परमानेंट इन्वेस्टमेंट के लिए फंड चाहिए तो उसका सबसे बेटर सोर्स होता है दैट यू इन्वेस्ट मनी इन इक्विटी शेयर्स परमानेंट, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर को इशू करना मतलब क्या है कि एक इक्विटी शेयर होल्डर्स लगा रहे हैं, वो ओनर ऑफ द कंपनी को, तो वो जब भी सोचेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हाँ, यहाँ पे पैसा लिक्विडेशन के समय मिलता है, दैट इज वाई अगर हम पीरियड और पर्पस ऑफ फिनेंसिंग के बारे में बात करें तो अगर हमें परमानेंट इन्वेस्टमेंट करना है तो परमानेंट इन्वेस्टमेंट और फंड्स की रिक्वायरमेंट अगर हमें चाहिए तो परमानेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होना चाहिए, इक्विटी शेयर पे होना चाहिए। आर द एप्रोप्रिएट चॉइस, डिवेंचर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रिफरेबल फॉर अ मीडियम टर्म फाइनेंस। और अगर हमें मीडियम टर्म ऑफ फाइनेंस चाहिए तो उसके लिए हम लोग किस पे डिपेंड, किसको प्रेफर करेंगे, देन एट दैट केस वी विल प्रेफर डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। सो पीरियड एंड द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग फॉर अ फंड रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स आर द एप्रोप्रिएट चॉइस, whereas debentures and preference shares are preferable for a medium term finance. Next your factor is, next and the last factor which affect your financing structure or capital structure, that is capital market condition. The state of capital market influences the choice of securities to be issued. During the boom period का मतलब है कि सबके पास बहुत पैसा है, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, आपने जो सोच लिया वो आप तुरंत खरीद सकते हो। तो वो जो पीरियड होता है, वो जो कंडीशन होता है उसको कहते हैं बूम पीरियड, जहाँ पर आपको सोचना नहीं है, इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग आपके पास पैसा खरीद रहे हैं उस चीज़ को, तो वो जो एक टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं बूम पीरियड। तो बूम पीरियड जब होता है वहाँ पर इन्वेस्टर्स हमेशा अपना पैसा वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, और ऐसे कंडीशन में ऐसे इन्वेस्टर्स हमेशा अपना पैसा इक्विटी शेयर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, वो कंपैरेटिवली डिवेंचर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। वो रेट ऑफ डिविडेंड इसलिए ज़्यादा दिया जाता है ताकि लोग आपके कंपनी में पैसा है, आपके कंपनी में इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करें। तो जब बूम पीरियड होता है, whenever there is a boom period, public always try to invest their money, public want to take risk at that time and they invest their money in equity shareholder. But in a bearish market, लेकिन जब मार्केट डाउन होता है, जब डिप्रेशन पीरियड होता है, ऐसे कंडीशन में कोई भी इन्वेस्टर जो है वो रिस्क नहीं लेता है, और क्योंकि उसको लगता है कि सेफेस्ट साइड देखता है, सेफ साइड चाहिए उनको कि भाई 10% इंटरेस्ट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे रिस्क क्या है, वहाँ पे रिस्क ये है कि भाई प्रॉफिट होगा तो हमको डिविडेंड मिलेगा और प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन डिवेंचर्स में अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिवेंचर में अगर हम पैसा लगा रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, तो वहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि कंपनी को किसी भी कंडीशन में आपको पे करना ही करना है, चाहे आपको
कंपनी को वहाँ पर आपको वो पे करना ही करना है। तो जहाँ पर डिप्रेशन पीरियड जब है तो किसी भी तरीके का कस्टमर या इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेता है कि पैसा लगा दिया और हमको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो पैसा लगाता है, कहाँ लगाएगा? वो पैसा हमेशा डेट पे लगाएगा, यानी कि वो पैसा अपना लगाएगा डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स में। The state of capital market influences the choice of securities to be issued, during whom investors are willing to take risk and invest in equity share. But in bearish market, investors prefer safe investment. किस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्रेफर करता है? सेफ इन्वेस्टमेंट. Therefore, preference shares and debentures carrying a fixed rate of return are likely to be more marketable in the depression period. भाई उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या जरूरत है रिस्क लेने का? तो इन दैट कंडीशन this investor always prefer to invest their money in debentures and preference shares. So today I have discussed all the important factors of capital structure and the capital structure. So you have to prepare a note in your copy. What is capital structure? High capital gearing and low capital gearing. When the ratio is high, capital structure ratio is high, then it is called high capital gearing. When the ratio is low, then we will call it as a low capital gearing. So you have to prepare a notes of capital structure and the different factors which affect the capital structure. So that's all for the today. Thank you.